میں راہیل ہارٹی کنگریچولیشن یار، تم نے فلم بھی کمال کی بنائی اور یہ مکان بھی بڑا خوبصورت تھا. It's really a dream in stone. واقعی یہ میرا خواب تھا اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس کی تعبیر بھی دے دی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو. میری کیا برائی ہو رہی ہے؟ آپ کی کون برائی کر سکتا ہے جناب؟ اس مکان کے بنانے میں تو جو کمال آپ نے دکھایا ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ اور مکانوں میں اور اس مکان میں صرف ایک فرق ہے، وہ یہ کہ یہ میں نے اپنی خوشی کے لیے اپنے بھائی کے واسطے بنایا ہے. اکبر صاحب، ایسے دوست بہت کم ہوتے ہیں. واقعی. اچھا بھائی ہم چل دیا. خدا. اب پھر آئیے گا. اب تو گھر دیکھ لیا، اب تو بار بار آئیں گے. شکریہ بہت بہت. نہیں، دیر بہت ہو گئی ہے، پھر بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پھر صبح دفتر بھی جانا ہے. تمہاری طرح وی آئی پی تو ہوں نہیں. ارے کہاں یار، ہم تو دن رات خچروں کی طرح کام کرتے ہیں. بیٹے نے بلایا ہے، تصویر بنا رہی ہے ہماری. عجیب عجیب سبجیکٹ لیتی ہے ہماری بیٹی بھی. چلو بھائی چلو، ایسا ہی ہوتا ہے. ارے آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ بہت ٹھنڈ ہے باہر. تم بھی بیٹھ جاؤ. کیا سوچنے لگے؟ جو خواب بند آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا اس وقت جاگتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس لیے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی. اوہ بائی دا وے، خوشی میں سردی نہیں لگتی کیا؟ نہیں، خوشی میں صرف خوشی لگتی ہے. سارے کام ٹھیک ٹھاک ہو گئے. بہت اچھی پارٹی رہی، سب لوگ بھی آ گئے تھے نا. تم خوش ہو؟ بہت خوش ہوں. اچھا یہ تو بتاؤ، اب تو کوئی پچھتاوا باقی نہیں رہا؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں زندگی میں کبھی نہیں پچھتائی اپنے فیصلوں پر. دکھی تو ہوئی تھی. تھوڑے بہت دکھ تو ہر ایک کے حصے میں آتے ہی ہیں نا. میری خاطر تم نے تھوڑے بہت نہیں، بہت سارے دکھ سمیٹے. آپ کے ساتھ مجھے کتنی خوشیاں ملی، ان کا بھی تو ذکر کیجئے. اتنی خوشیاں کس کو ملتی ہیں؟ امی 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 جلدی آئیے، زوبی خالہ کا فون ہے. بہت خراب ہے. آپ آئیں کیوں نہیں؟ اٹس اے بیوٹیفل ہاؤس، بہت بڑا ہے. آپ دیکھیں گے تو مر مٹیں گی، بلکہ اتنا بڑا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہیں کھو نہ جائے. نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. اصل میں آج پہلا دن ہے نا، اس لیے اپنا اپنا نہیں لگ رہا. پارٹی تو بہت اچھی تھی، بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، فلم کے بھی کافی لوگ تھے. مہربانی، مجھے کوئی شوق نہیں لوگوں سے ملنے کا. جی جی نہیں نہیں، آئی ڈونٹ کیئر. کپڑے نہیں، کپڑے بس کوئی خاص نہیں بنائے بٹ ٹھیک ہی ہیں. فار گاڈ سیک زوبی خالہ، کبھی میری بھی تعریف کر لیا کریں. ذرا اٹھاؤ نا تار. نہیں نہیں، میں آپ سے نہیں کہہ رہی، سے اتنے زبردست کپڑے بنائے کہ آپ دیکھتی تو مزہ آ جاتا آپ کو بھی. کیا بات کر رہی ہیں؟ بلیو می، آج پارٹی میں پورے 4 کیک میں نے اپنے ہاتھ سے بیک کیے ہیں. نو ڈونٹ بی سو مین. جی اچھا لیجیے، امی آ گئی. وعلیکم السلام. سوبی ڈارلنگ، تم نے وعدہ کیا تھا. یہ بہت بری بات ہے، تم آئی کیوں نہیں؟ اوہو، تمہیں پتا ہے تمہارے بغیر ہم میں سے کسی کو لطف نہیں آتا. اپی میں شرطی آ جاتی. آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھے سیر و تفریح کا کتنا شوق ہے. یوں کہ ہمارے کالج میں اسٹوڈنٹ ویک منایا جا رہا ہے اور میں یونین کی انچارج ہوں. بس یہ خطا کافی تھی میرے قید تنہائی کی. بس کام ڈھونڈتے ہوئے مجھے چلے آتے ہیں، میں کیا کروں. بڑے افسوس کی بات ہے، نقصان تو میرا ہوا ہے. سیر و تفریح میری ماری گئی، شیش محل میں آپ کا نہ دیکھ سکی، اور جو اس موقع کے لیے میں نے کپڑے بنائے تھے نا ان میں بھی پھپھوندی لگے گی اب، اور الٹا آپ ڈانٹ رہی. آپ فکر نہ کیجیے، جو طوفان آج ٹل گیا ہے نا وہ ضرور آئے گا. ویسے بھی بہت دن ہو گئے ہیں مجھے مانو بازار کی چاٹ کھائے، انارکلی کی خاک چھانے. توبہ توبہ،
आधा खाते आधा फेंकते हैं और गिलासों में हाथ धोते हैं। अरे मैं कहती हूँ बेटा, आखिर लोग क्यों समझते हैं जैसे अल्लाह ना करे आखिरी खाना खा रहे हो जिंदगी का। बुरी बात है दीदी, वो हमारे मेहमान थे, ऐसे नहीं कहते। अरे मेहमान ऐसे होते, देखो तो चंदा, चले आते पर फैलाए मुंह खोले में। आई दूर दफा टिड्डी दल की जात के मेहमान, देखो तो कितना नुकसान हुआ है, यहाँ से वहां तक फसल कटी पड़ी है। बस नियत नियत की बात है। शरीफ, शरीफ जी हाँ, चलो उठाओ ये सारे बर्तन। इब्राहिम लिंकन के बाद तो हमारी बीवी ही पैदा हुई है। क्या घन गरज है तकरीर में। आज का मौजू है कौमी सरमाए का नुकसान। कौमी सरमाए का नुकसान। अरे कभी तुम भी हाथ पांव हिला लिया करो, फालतू शाखें नहीं लगाई अल्लाह मियां ने दाएं बाएं। शरीफ मसलामत से क्या वो आके ले जाएगा। भाई आ गया हुआ, उसने बर्तन उठा ली, अब उससे कुछ नहीं उठेगा। अब तो वो अपने आप को उठा ले तो बहुत बड़ी बात है। तोबा तोबा, ऐसी नीयत तो मैंने किसी की नहीं देखी। आई पेट को कुआं समझ रखा उसने, डाले जाता डोल भर भर के। आने जाने में कोई 5-10 प्लेटें साफ करिए। तुम चुप रहो, कहीं अम्मी ने सुनी तो खामा उसकी जिंदगी हराम कर देंगे। झूठ है, मैं देख नहीं रही सुबह से। आई तू चल और मैं आया। कोई 2 दर्जन कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें खाली की है जालिम ने। तुम चुप। शरीफ रहने दो, तुम शरीफ शरीफ कर रही हो, इतना भी वो शरीफ नहीं है। अरे वो मेरी प्लेट भी ले गया। कौन सी प्लेट? जो मैं खा रही थी जब आनी का फोन आया था। तुम भी कोई सलामत से कम नहीं हो। 6 प्लेटों तो मैंने तुम्हें देखा लेके जाते हुए। इतना झूठ तो मत बोलो। बहुत रात हो गई है, बाकी काम सुबह हो जाएगा। हाँ बेटी, थक गई होगी। और तुम थी कहाँ सारे वक्त? मैंने तलाश भी किया मगर तुम नजर नहीं आई। बस यही थी अब्बू, किसी कुर्सी के पीछे देखा होता ना आपने, तब नजर आती है। कोई नहीं। घबराने से मैं बहुत तंग हूँ ज़रा। कहाँ मैं घबराती हूँ, यहाँ सामने ही तो थी। कोई सामने मामने नहीं थी। सामने तो तुम आ ही नहीं सकती। 4 लोग आ जाते हैं तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। 8 लोग आ जाए तो हवाइयां उड़ने लगती हैं, और अगर उससे भी ज्यादा हो तो बस बेहोश हो जाओ तुम। वाकई पास वक्त मैं सोचती हूँ तुम्हारा कैसे गुजर होगा इस दौर में। अरे कर लेगी गुजर, आप फिक्र न करें। इसके बाप की भी अच्छी भली गुजर हो रही है। तो बाप भी पहले बहुत घबराता था लोगों से, चेहरा फक हो जाता था। अब देखिए लोग ही लोग हैं हर तरफ। असल में मुझे अबू डर वर नहीं लगता, लेकिन मुझे मजा भी नहीं आता मजमू में। खामखा इतने सारे रंग बिरंगे लोगों का तमाशा देखो कि बेकार लतीफों पर हंसते रहो, बातें करो उनसे बैठ के, दिल चाहे ना चाहे। सख्त घबराहट होती है मुझे। दरअसल में बात सिर्फ इतनी है कि तुम हो एक वीराने का परिंदा, गलती से भटक के आ गई हो हमारे घर में। अम्मा जान सुनो, वो तो आया ही नहीं जिसका रिश्ता आया था तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या मालूम कौन था वो, आया होगा। अरे मैं तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं हूँ, मैंने सारी इंक्वायरी कर ली है। उसके अब्बा अम्मी आए हुए थे, बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहे थे तुम्हें। गप मारने का बहुत शौक है तुम्हें। 100% सच कह रही हूँ, तुम्हारे काम से बड़ा मुतासिर हो रही थी। देख लेना, तुम्हारे जाते ही सारा किचन तुम्हारे हवाले करके बड़ी भी ऐश करेंगी। इतनी फजूल बातें करती हूँ। सुना लड़का बड़ा अच्छा है, जबरदस्त जॉब है, ये लंबी गाड़ी है, बंगला है, वगैरह वगैरह। मुझे कतई कोई दिलचस्पी नहीं है, ना लंबी गाड़ी में, ना जबरदस्त जॉब में, ना बड़े सारे बंगले। वैसे ही मैंने अभी शादी नहीं करनी, तुम मम्मी से कह देना। टेलीफोन ऑपरेटर लगी हुई तुम्हारी, जो कुछ कहना सुनना है खुद ही कहना। सुना लड़के की शक्ल बिल्कुल जूलियस सीजर से मिलती है। मेरी तरफ से लड़के की शक्ल चंगेज खान से मिलती है। मुझे उससे क्या कमाल है, अभी तक तो मैंने इम्तिहान दिया नहीं है और घर में शादी की वबा फैल गई। तुम हद दर्जे की नाशुक्री हो ज़ारा। पता है बीबी क्या कह रही थी कि खुशकिस्मत होती हैं वो लड़कियां जिनके लिए यूं टपाटप ओलों की तरह रिश्ते टपकने लगते हैं, जैसे ज़ारा के लिए टपक रहे। मुझे नहीं चाहिए ये पटापट लड़के। अब सो जाओ तुम। नींद नहीं आ रही तो क्या करूं, और नींद भी कैसे है, भूख जो इतनी लग रही है। भूख लग रही है अभी से? अभी इतना सारा बहुत तो तुमने खाया है। ठीक से कब खाया मैंने? अच्छा मैं नीचे जा रही हूँ कुछ लेने के लिए, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? जी नहीं, मुझे तो तुम माफ करो, और मेरी बात सुनो तो तुम अपने ऊपर भी कुछ रहम कर लो। कितना लंबा सफर तय करके आज हम यहाँ तक पहुंचे। वाकई मैं समझता था ख्वाब कभी पूरे होते नहीं, पूरे होने के लिए होते ही। मालूम हुआ कि कभी कभी हो भी जाते। वो जो खटक और शर्मिंदगी सी थी मम्मी डैडी की तरफ से, वो जैसे आज मिट सी गई हो। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? बहुत अच्छी। परी, जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर से लेकर चला था तभी मैंने अपने दिल ही दिल में कसम खाई थी
کہ جیسے گھر سے تمہیں نکال کر لایا تھا اس سے بھی اچھے گھر میں پہنچاؤں گا. سو آج میں نے اپنی وہ قسم پوری کی. تو کبھی کچھ نہیں کہا تھا. اتنا میں جانتا ہوں، عورت محبت کے خواب ضرور دیکھتی ہے، محبت کی خاطر قربانیاں بھی دے سکتی ہے، لیکن اگر محبت اسے خوابوں کا گھر نہ دے سکے تو یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. حد کرتے ہیں آپ. میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا اور نہ مجھے کبھی کچھ مانگنے کی ضرورت. جب دو انسان قریب آ جاتے ہیں تو لفظوں کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، بات بغیر کہے بھی سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے. اچھا بابا، اچھا مان لیا. اب آپ سو جائیں. بس کرو سنیا، توپ کا گولا ہو جاؤ گی. ایمان سے اتنے مزے کے کباب ہے کہ میں کچھ بھی ہو جاؤں، مجھے پرواہ نہیں. لو تم بھی کھاؤ. شکریہ، مجھے کوئی شوق نہیں آدھی رات کو کھانے کا. تبھی تو ان لوگوں نے تمہیں پسند کیا ہے. نہ کھانے پینے کا خرچہ، نہ گھومنے پھرنے کا، نہ کپڑے زیور کا. ایمان سے بڑے چالاک لوگ ہیں یہ. میں بھی پڑھوں گی، پڑھ چکی. پتہ ہے وہ بڑی بھی تمہیں ایسے دیکھ رہی تھی جسے بلی کبوتر کو دیکھتی ہے. بالکل جھپٹ پڑنے کا انداز تھا. دیکھو زیادہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم پلیز کل امی سے بات کرنا اور ان سے کہنا کہ ختم کریں یہ قصہ. واہ واہ، کتنے قصے ختم کروں گی میں. پہلے اس بھونگے سے لڑکے کو بگایا جو کالج تمہارے پیچھے آہیں بھرتا تھا، پھر اس ترم خان کو بگایا جنہوں نے پتہ نہیں تمہیں کہاں دیکھ لیا. اب میرا ہی کام رہے گی کہ تمہارے اوپر سے مکھیاں ہلاتی رہوں. سوری. پلیز صرف یہ والی مکھی تم ہلا دو، باقی کی میں خود ہلا دوں. ایمان سے زارا احمد، تم تو پوری جلیبی ہو گئی ہو. وہاں کہاں چلی؟ نیند نہیں آ رہی مجھے بس. نیند کو کیا تکلیف ہو گئی؟ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں سے. بادلوں کے ساتھ چاند ایسے چل رہا ہے جیسے تیر رہا ہو. او مائی گاڈ، یہ چاند اور بادل، کیا بات ہے بھائی. آج پارٹی میں کس کس سے ملی؟ سچ سچ بتا دو. چاند کا پارٹی سے کیا تعلق؟ عجیب باتیں کرتی ہو تم بھی. چاند کا پارٹی سے اس لیے تعلق ہے کہ آج سے پہلے تم کبھی اس طرح کھڑکی پہ کھڑے ہو کے بیچارے چاند کو دیکھا تک نہیں، بلکہ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، تکونی، چکور یا جلیبی جیسی. نوکروں نے پتہ نہیں گھر کے دروازے بند بھی کیے کہ نہیں. ایک تو اس گھر میں دروازے بہت ہیں. ایک تو تمہارے ڈرنے میرا ناک میں بڑا دم کیا ہوا ہے، ہر وقت ہر چیز سے ڈرتی رہتی ہو. کمرے کا دروازہ لاک کیا تم نے؟ یہاں کون تمہیں پکڑنے آ رہا ہے؟ بھئی آخر چیک کرنے میں کیا حرج ہے؟ اب کھڑکیاں بھی بند کرو، کیا پتا کوئی ٹازن کی طرح کودتا ہوا درختوں کی شاخوں سے لٹکتا ہوا اندر آ جائے. کہاں جا رہی ہو؟ فریج میں رس ملائی بھی پڑی ہے، ایک لے آتی ہوں. اللہ کی پناہ سنیا، طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری. کبھی کھانے سے کسی کی طبیعت خراب ہوئی ہے؟ دیکھیے ذرا. سلامت ہے. دیکھو کیسا بنتی ہے آدھی رات کو بھی بتائیے آگے سوچنے میں پڑا. تو یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں سمجھا چلو میں تو پانی پینے آیا تھا. کیوں چیخ رہی تھی اس طرح سے؟ کیوں آئی یہاں؟ تم کیوں چلا رہی تھی؟ میں سمجھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ایک اور چلو چلو جاؤ. زارا، 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 خواب میں ڈر گئی کیا؟
चलो पियो। बिल्कुल पागल हो तुम, दिन को लोगों से डरती हो, रात को ख्वाबों से। सनिया, मैंने फिर वही ख्वाब देखा। वो वही। कौन सा? वो बचपन वाला ख्वाब? हाँ। इतने अरसे बाद क्यों दिखाई दी है? नए घर की बात है, तुम घबरा रही थी, शायद इसीलिए डर गई। लेकिन ये सिर्फ मुझे क्यों दिखाई देता है? अब मैं कल रात इस ख्वाब से पूछ के तुम्हें बता दूंगी। तुम ऐसे करो, थोड़ी देर की सो जाओ, और खुदा के वास्ते उस ख्वाब वाले जंगल में मत चली जाना। अगर जाना बहुत जरूरी हो तो किसी अच्छी जगह चली जाना। अभी मुझे तो तुम्हारा ये मोहल्ला बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों बीबी? ये कोई मोहल्ला है? हाय, मकान लिया होता किसी जीती जागती बस्ती में लिया होता, कोई इंसानों की बस्ती में। तौबा तौबा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी जान से दूर बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं मुझे। अरे नमाज के लिए खड़ी होती तो अपनी मगफरत का ख्याल आने लगता है। तौबा। हेलो, आज सुबह नमाज पढ़ के उठी, सोचा कि बाहर सैर करके आऊं। अरे देखो मोहल्ला कैसा है, लोग कैसे हैं। मैं बाहर निकली तो जंगल बेआबान सन्नाटा पड़ा हुआ। अरे ना आदम जाल, उल्लू भी नहीं बोल रहे थे। अरे बेबी सो रहे होंगे। अरे उल्लू सो रहे थे? नहीं बीबी, लोग सो रहे होंगे, पर मगर कब तक? आज शाम तक सोते हैं क्या? अरे माशाल्लाह, दिन चढ़े हमारे घर में भी सवेरा होता है, मगर यहाँ तो बास्तफात बाहर निकली तो ऐसे लगा जैसे जंग का सायरन बज गया हो, लोग खंतकों में छुपे पड़े हैं। बीबी तो इतनी सुबह सुबह तुमको लोगों के घर जाने की जरूरत क्या थी? फिर पूछ रही हो जरूरत क्या थी? कोई कर्जा थोड़ी लेने गई थी मैं। जो लोग देर से सोते हैं वो देर से जागते। आए फिटकार पड़ती है देर तक सोने पर। बीबी तुम अपने घर की भी तो खबर लो, जाओ जगाओ उन दोनों लड़कियों। हेलो, अब उन दोनों को जगाना भी कौन सा आसान काम है? सुनो सनिया, प्लीज आज अम्मी से जरूर बात कर लेना। क्यों? मैं क्यों करूं? प्लीज। नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है, और ना ही मैं किसी मोहल्ले कमेटी की सदर हूं कि आस पड़ोस के मसाइल हल करती रहूं। और 1000 काम है मेरे पास, तुम खुद करो। मैं नहीं कर सकती ना। तुम कर क्या सकती हो वो मुझे बता दो। बस मैं कुछ नहीं कर सकती। खुश? मान से ज़ारा, मुझे तुम्हारा अंजाम बड़ा भयानक नजर आता है। मैं सोचती हूँ आखिर तुम्हारा बनेगा क्या? कुछ नहीं। तुम करोगी क्या जिंदगी में? कुछ भी नहीं करूँ। अच्छा, मैं तौलिया दे नजर। ईमान से तुम्हारी जैसी निकम्मी लड़की मैंने सारे जमाने में नहीं देखी। मैं सोचती हूँ आखिर बनेगा क्या तुम्हारा? कुछ नहीं, और मुझे परवाह भी नहीं है। परवाह मुझे करना पड़ेगी, क्योंकि रोना मुझे पड़ेगा। अच्छा बको मत, मैंने कह दिया कि मैंने शादी वादी कुछ नहीं करनी है। कमाल की बात है, इतने कपड़े जेवर मिलते हैं, सलामी मिलती है, ठाठ होते हैं, मुझे कोई कहे मैं तो फौरन कर लूं, लड़के की शक्ल तक ना देखूं, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, पागल हो ना इसलिए। अहमियत बढ़ जाती है, लोग बिला वजह इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। जरा गौर करो कितने फायदे हैं, जो जी में आए करो, कोई पूछता ही नहीं है, और ना ये सुनने को मिलता है कि लोग क्या कहेंगे। सनिया सुनो, देखो तुम्हें वो मेरे मोतियों वाले टॉप्स अच्छे लगते हैं ना, वो तुम ले लो, लेकिन प्लीज आज ही अम्मी से बात कर लेना। थैंक यू, वो तो मैं ले लूंगी, मगर मुझे लगता है कि हशर के रोज तुम्हारे अमाल के जवाब मुझे ही देना पड़ेंगे। तुम मुझे धकेल के अल्लाह के सामने खड़ा कर दोगी, एंड दिस इज नॉट फेयर ज़ारा अहमद। तुम्हें कितनी बार कहा है आयतल कुर्सी पढ़कर सोया? पढ़ती हूँ अम्मी, लेकिन कल रात ही गड़बड़ में भूल गई थी। तौबा तौबा, इतनी खौफनाक चीखें मारी कि मैं तो बस मरते मरते बच। बहुत अरसे से तो तुमने ये ख्वाब नहीं देखा था। नया घर देखने आया होगा, ख्वाब भी। पता नहीं तुम्हारे दिमाग पर किस किस्म का खौफ तारी है। इसके दिल पे तो हर तरह का खौफ है, इम्तिहान का खौफ, ख्वाब का खौफ, लोगों का खौफ, जिंदगी का खौफ, शादी का। सनिया फजूल बातें नहीं करते। फजूल नहीं, सही कह रही हूँ अम्मी। अच्छा चलो नाश्ता करो। वो तो कर रही हूँ, लेकिन आपसे कहना था कि ज़ारा शादी नहीं करेगी। देखो तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तुम्हें इस मामले में बोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो आप ज़ारा से पूछ लें। मुझे ज़ारा से भी पूछने की जरूरत नहीं है। ज़ारा को अगर कुछ कहना होगा तो खुद कहेगी। जी जी, कह चुकी हूँ उम्र भर। देखो मैंने तुम लोगों को बहुत आजादी दे रखी है, दोस्तों की तरह रखती हूँ, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम लोग हर मामले में बोलने लगो, समझी?
सलामत, जी बेगम साहब। साहब को नाश्ते के लिए भेजो। अच्छा मैं तुम पर पढ़कर दम कर दिया करूंगी, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी कौम जमा है। काम जीती रहे। जरा बेटे जरा चाय बनाना, चाय के बगैर ना कुछ नजर आता है ना कुछ सुनाई देता है। थैंक यू डार्लिंग। सुनिए, जरा ने फिर वही ख्वाब। वो ख्वाब? जी, कोई पुराना। कोई बात नहीं बेटे, जागते में डरने से बेहतर है कि आदमी सोते में डरता रहे। कम से कम आंख खुलने का इम्कान तो रहता है। बाकी डर गई हो? जी, सोते में डर गई। मगर जो लोग जागते में डरते हैं उन्हें कम से कम सोते में नहीं डरना चाहिए। बाज लोगों की अकल नहीं होती, उनके बारे में क्या ख्याल है? हाँ सनिया, बुरी बात। बड़ी बहन को कह रही हो? 2 साल तो बड़ी है, और बड़ी भी कैसे हुई? सारा काम तो मैं करती हूँ इसके लिए। सनिया, फिर वही। अबू, यस बेटे। अबू आपसे एक बात करना है। हाँ, फिर पैसों की जरूरत पड़ गई? उस दिन तो दिए थे। पैसों की बात किसने की हो या न की हो, मैं और पैसे हरगिज न दूंगा। पैसों की बात ही नहीं है बिल्कुल। कोई गड़बड़ की है क्या? अपनी अम्मी की कोई चीज तोड़ दी है? कुछ नहीं तोड़ा, बहुत जरूरी बात है। तुम्हारी हर जरूरी बात में कोई ना कोई सख्त गड़बड़ होती है। फिल्म देखने जाना है या पिकनिक पे जाना है तो अपनी अम्मी से बात करो। गॉड, आप एक मिनट बात तो सुने। सुनने से कोई फायदा ही नहीं बेटी। मैंने अगर इजाजत दे भी दी तो तुम्हारी अम्मी रोक लेंगी। वो बात ही नहीं है। तो फिर जल्दी से बताओ क्या बात है। मुझे फौरन स्टूडियो पहुंचना है, मेरा इंतजार हो रहा है। अब इतनी भी जल्दी मैं आपको नहीं बता सकती। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, रास्ते में मुझे किताब नहीं सब। वो शादी नहीं करेगी। वो जो आ रहे हैं ना, आप उन्हें मना कर दिया। सारा ने तो शक्ल तक नहीं देखी उसकी, और फजूल में वो आदमी घर वाले पीछे पड़ गए उसके साथ। अम्मी को ही पसंद आ। बात सुनो, अव्वल तो ये मामला ज़ारा का है, उसके बाद ये डिपार्टमेंट तुम्हारी अम्मी का। मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही लाचार हूँ, तुमसे भी ज्यादा। तुम समझ रही हो मेरी पोजीशन? अबू, आप इस तरह नहीं कर सकते, कुछ तो ज़ारा का ख्याल कीजिए। से बेटे, ये जो रिश्ते की बात है अभी बात ही है, तुम लोग क्यों खामखा इतना परेशान होती हो? मुझे अम्मी के तेवर ठीक नहीं लग रहे। वो बात ही बात में बात तय कर देंगी, देख लीजिएगा। तो फिर ज़ारा से कहो अपनी अम्मी से मना कर दे। ज़ारा ने उम्र भर किसी को किसी बात से मना किया, जो अब करेगी, वो भी अम्मी को। मगर कभी न कभी तो उसे बोलना पड़ेगा। उससे कहो अभी से शुरू कर दे, अच्छा होगा उसके लिए। हाय काश मैं भी इतनी मशहूर होती, मेरे भी इतने फैंस होते ना, सारी उम्र खड़ी रहती। वाह अबू, यू आर रियली ग्रेट, सो पॉपुलर एंड फेमस। कितने लकी हैं आप। उफ़ो, तुम चैन से एक जगह बैठती क्यों नहीं हो? चुप करो। पर ये क्या तरीका है सोचने का? लगता है कोई लगड़ बगड़ दौड़ते मैं सोच रहा हूँ। बड़े अफसोस की बात है, एक तो तुम्हारे लिए इतनी तकलीफें उठा रही, उल्टा तुम ही मजाक उड़ा रही हो। तुम्हारे साथ तो नेकी करना भी हिमाकत है। सुबह से सोचते सोचते रात के 8 बज गए। 8 बज गए तो 8 बज गए। अब्बू का इंटरव्यू। आज आपके सामने फिल्मी दुनिया का जो रोशन सितारा आ रहा है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। राहिल अहमद का शुमार उन लोगों में होता है जिन्हें तारुफ के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं होती। 15 साल के मुख्तसर अरसे में इन्होंने 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और हर फिल्म में इनकी मौजूदगी ही कामयाबी की जमानत होती है। हम सब इनके इंतहाई एहसानमंद हैं। बात यह है बीवी के जिंदगी को देखने के लिए लोग 2 शीशों वाली ऐनक इस्तेमाल करते हैं, जिसके एक हिस्से से जिंदगी रोशन नजर आती है और दूसरे से तारीक। मैंने किया यह है कि उसके आधे शीशे रंगीन कर लिए हैं ताकि तारीक रुख नजर ही ना आए। राहिल साहब, आप तारीख रुख क्यों नहीं देखना चाहते? मेरी बिनाई जरा कमजोर है, मुझे सिर्फ रोशनी नजर आती है, अंधेरे नजर नहीं आते। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं दिया? मैं समझा दे दिया।
تو اس کی وضاحت کروں میں کہ اندھیروں کی طرف دیکھتے رہنے سے نظروں میں اندھیرا بڑھتا جاتا ہے اور روشنی کی طرف دیکھنے سے اجالا بڑھتا ہے. ہوا یہ کہ ذاتی زندگی میں خوش و خرم رہتے رہتے کچھ عادت سی پڑ گئی ہے, اس لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. یہ میری مجبوری ہے. رونے کی کوشش کروں تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں. آپ کو اتنی جلدی یہ اس دریا کی طرح ہوتی ہے جناب بھاری چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. اور جی مجھے آپ کا میسج مل گیا تھا, میں نے فون بھی کیا تھا تھا لیکن آپ ملے نہیں. آپ کا کیا خیال ہے, جی معلوم تو ہنستے ہوا رہنے تھا, سے یا مگر خوش میں رہنے بھی بڑا سے مجبور تھا. دنیا کی تکالیف اور مسائل اب کوئی کم ہو ڈیٹ جاتے ہیں؟ نہیں دے سکتا. بالکل. دیکھیں نا, سوری. جو لوگ مسکراتے رہتے ہیں خدا ان کے مقدر میں ہنسی کی مقدار بڑھاتا رہتا ہے, اور جو ہنسنا نہیں جانتے ان کے حصے کی ہنسی کم ہوتی جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ 60 فلموں جی تو میں پھر تھا. اور اتفاق سے سب کے سب کامیاب رہیں. وجہ یہ ہے کہ کوئی 10 سال بعد اس بار میں 1 مہینہ ریسٹ کرنا چاہتا ہوں, اور اسے میں کسی قیمت پر گنوانا نہیں چاہتا. یقین کیجیے تھک گیا ہوں بھائی کام کرتے کرتے. سلامت, تجھے کب عقل آئے گی؟ 1000 بار تجھ سے میں نے کہا ہے کہ فون پر اپنی مرضی سے کچھ مت کہا کر. بیگم صاحبہ میں نے اپنی مرضی کب بتایا؟ بیوی نے کہا تھا کہ صاحب جلدی آئیں گے گھر. کیا کہا؟ کیا کہا؟ مجھ پہ الزام لگا رہا ہے؟ دیکھ لو بی بی, آئے اس کے دماغ میں مٹر کے دانے کے برابر عقل نہیں اور چلا مجھ پہ الزام لگانے. رہنے دو بیوی, ہم کو بھی توپ کے گولے جیسے مغز کی ضرورت نہیں ہے. دن رات چلتا رہتا ہے فضول بے فضول. کیا کس کو کہہ رہا ہے؟ کالے چور کو کہہ رہا ہوں, تم کو کیا؟ دیکھ لو اور مجھے کالا چوٹ میں جان سے مار دوں گی. بی بی کیوں اس کے منہ لگتی ہو؟ سلامت کے بچے کیوں بکواس کرتا ہے بڑوں سے؟ چلو نکلو ایسے. بیگم صاحبہ بیوی خفا تھوڑی ہوتی ہے میری باتوں پہ, بلکہ خوش ہوتی ہیں, اور جب کبھی نہیں بولتا ہوں نا خود پوچھنے آ جاتی ہیں کیا ہو گیا تجھے آج, بکواس کیوں نہیں کر رہا تو؟ بکواس کیوں نہیں کر رہا تم؟ تجھے پوچھتی ہے میری جوتی گیلی کر کے تیرے سر میں ماروں گی کماہر. بیگم صاحبہ میری وجہ سے ان کی 6 جوتوں کا خرچہ اور میری حجامت کا کوئی خرچ ہی نہیں. آئے تیرے تو خاندان سے خرچہ نکلواؤں گی میں, حجامت کا تم باہر. امی ہم لوگ ذرا باہر جا رہے ہیں, فوزیہ کے گھر. ابھی آ جائیں گے, گاڑی سے جا رہے ہیں. آپ کو گاڑی کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں ضرورت تو نہیں ہے, لے جاؤ, لیکن تم لوگوں کو کیا کام ہے؟ بس ایسے ابھی آ جائیں گے. اوکے, خدا حافظ. جاؤ, خدا حافظ. سنیا میں نے کہہ دیا کہ میں بس بالکل ہرگز اوپر نہیں جاؤں گی. خدا کے واسطے زیادہ تمہیں کوئی کھا تو نہیں جائے گا وہاں؟ کھائے نہ کھائے میں نے نہیں جانا. اچھا بابا نہیں لے کے جاتی, معاف کرو. اور ذرا آئینے میں اپنی ہونک سی شکل تو دیکھو, حد ہے. اچھا تم بیٹھو, میں 5 منٹ میں آئی. کسی کو ضرورت نہیں, جیسے آپ سے بہت ضروری بات کریں. جی فرمائیے. آپ وہی ہیں نا؟ ساجد. میں سمجھا آپ کسی اور طرح کے ہوں گے. اور طرح کے؟ خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کیسے بھی ہو. آپ سے یہ کہنا ہے کہ زارا جو ہے نا میری بڑی بہن, جس کے لیے آپ نے پرپوزل بھیجا تھا, اس نے شادی سے منع کر دیا. جی صاف انکار کر دیا اس نے. آپ بھی منع کر دیں. میں سمجھا نہیں کچھ. اس میں سمجھنے والے کوئی بات ہی نہیں ہے, صرف اتنی سی بات ہے کہ زارا آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی. یہی کہنے آئی تھی؟ جی ہاں, بڑی مشکل سے. میرا مطلب ہے کہ اس کا شادی کا بھی کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ برے آدمی ہیں, اچھے خاصے, لیکن اسے پسند نہیں تو کیا کریں. اسے بالکل سیاہ بھی نہیں ہے جیسے ہمارا سلامت, اور رنگ بھی ٹھیک ہی ہے, آنکھ ناک بھی بس ٹھیک. شکریہ. نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں, بعض لڑکیاں تو اتنی بے وقوف ہوتی ہیں کہ آپ سے بھی بدتر لوگوں سے بلا تکلف شادی کر لیتی ہیں. پر آپ تو امیر ہوں گے, لیکن وہ تیار نہیں, وہ تیار ہی نہیں. اطلاع دینے کے بعد بہت شکریہ. تو انکار کر دیں گے نا آپ؟ مجھے پتا تھا آپ مان جائیں گے, تبھی تو میں نے زارا سے کہا تھا صرف 5 منٹ کی بات ہے. وہ خامخواہ گھبرا رہی تھی, بڑی ڈرپوک ہے. لگتا تو نہیں. آپ اسے نہیں جانتے, میں جانتی ہوں. اچھا تو میں جاؤں؟ آپ کی مرضی ہے. انکار تو کر دیں گے نا آپ؟ جیسا آپ کہیں, لکھ کر دے دوں یا زبانی کہہ دوں؟ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس آپ ایسے کریں ہماری امی کو فون کر کے منع کر دیں. کیا کہوں؟ کچھ بھی کہہ دیں, بس منع کر دیں. کہہ دیں لڑکی مجھے پسند نہیں ہے, فضول سی ہے بالکل. مگر انکار اپنی طرف سے کریے گا, کبھی میرا نام مت لیجیے گا ورنہ شامت آ جائے گی میری. تھینک یو. ویسے آپ ٹھیک ٹھاک آدمی ہیں, میرا مطلب کوئی خاص برے نہیں. بس کوئی 8-10 دن کا کام اور باقی ہے, تب تک تم ایسا کرو کہ اپنی تیاری کر ڈالو. میں اس مہینے کے آخر تک نکل جائیں گے. جب تک آپ کو پوری طرح فرصت نہیں ہو جاتی نا, جب تک ہم تیاری نہیں کریں. ارے بھائی کبھی کبھار تو یقین کر دیا کرو. کوئی فائدہ نہیں, بہت کر کے دیکھیں. اگر میں کچھ کروں نا تو جو چور کی سزا وہ میری. ارے تم دونوں اتنی چپ چپ کیوں ہو؟
हैं? भाई तुम्हें भी ले जाएंगे, अगली दफा सारा यूरोप घुमा देंगे। इस मरतबा तो इम्तहान अटक गया है ना। थैंक यू। देखो तुम लोग अगर बहुत परेशान हो रही हो तो हम रुक जाते हैं कुछ दिन। नहीं, वैसे ही मेरे इम्तिहान अब अगले महीने ही है और अब्बू की भी छुट्टियां खामखा बेकार में जाएंगी। आप रुक जाएं। अरे तो इतनी चुप क्यों हो, बोर हो रही हो? नहीं, बोर क्यों होते? देखो सलमा फूफो भी आ जाएगी, उनकी बेटियां होंगी और भी हमने सबसे कह दिया है सब लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो वाली पप्पो, वो तो बहुत डांटती हैं। बुरी बात है सनिया, बहुत बुरी बात है। नहीं अम्मी, हम रह लेंगे। तुम्हारे पे तो किसी बात का असर ही नहीं होता। देखो तुम दोनों के रिजल्ट आ जाएं, फिर तुम्हारे अब्बू ने क्या क्या प्रोग्राम बना रखे हैं सुनोगी तो दंग रह जाओगी। बताएं जल्दी, बताएं ना। हाँ हाँ, भाई मैंने सोचा है कि ज़ारा को इतना शौक है, इतना टैलेंट है उसमें, तो इसे पेरिस के स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला दिलवाऊंगा। पेरिस में? जनाब पेरिस में। जरा गौर कीजिए, कहाँ आप और कहाँ पेरिस। क्यों, पेरिस में ऐसी क्या खास बात है? अब्बू, क्या मैं वहां पे फिर अकेली जाऊंगी? जी नहीं, पूरा मोहल्ला जाएगा वहां तुम्हारे साथ। सब आपको फोन। नहीं देखो बेटे ज़ारा, वहां डरने की कोई जरूरत नहीं है। शानदार से हॉस्टल में रखूंगा अपनी बेटी को। हाँ, ठाठ से पढ़ना। फिर वहाँ अंकल अशफाक भी तो हैं एम्बेसी में, चाहो तो उनके घर जाकर ठहर जाना। फ्लैग वाली गाड़ी में घूमती फिरना। खुदा की कसम, कोई आज मुझसे कहे तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर 1 मिनट में चल दूं मैं। जी 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 नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। खुश नहीं हुई कोई? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ अब्बू, बहुत खुश हूँ। अच्छा जी। तो फिर घबरा क्यों रही हो? घबरा रही? नहीं, मैं घबरा तो नहीं रही, खुशी के मारे ऐसे हो रहा है अब्बू जी। अच्छा, हाँ। खुशी क्यों? और तुम्हारे लिए मैंने सोचा है कि तुम लंदन में पढ़ोगी। रियली अब्बू, सो स्वीट। तुम तो मेरी 30 माह खान बेटी हो, सारे लंदन को सर पर उठा लोगी। परेशान हो तुम लोग? तो कुछ ज्यादा परेशान हो तो हम अपना प्रोग्राम बदल देते हैं। नहीं जाते? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे साथ ही चलेंगे। नहीं, क्या बात है? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। सनिया? नहीं अब्बू, बिल्कुल ठीक है। जी नहीं, बिल्कुल ठीक। मैंने तुम्हें पहले मना किया था, मगर तुम मेरी सुनती कब हो? एक तो तुम्हारे लिए किया था सब कुछ, उल्टा तुम ही डांट रही हो मुझे। हद है। बुला रही हैं। तुम्हें बुला रही होंगी। तुम दोनों को बुला रही हैं। मुझे मुझे बुला रही है? क्यों? सनिया, उनको शर्तिया पता चल गया। पढ़ने वाले कमरे में है, बहुत गुस्से में है। बहुत गुस्से में है। अब क्या होगा? मरवा दिया ना। मैंने क्या किया है? मैंने क्या किए? आई एम रियली शॉक्ड। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर अहमक लड़की हो। तो जलील ने बता दिया आपको सब कुछ? उसकी शक्ल से ही लग रहा था ऐसा ही होगा, फजूल सा। सनिया, लेकिन उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। आउच। यू शुड बी अशेम्ड। बहरहाल साजिद का फोन आया था, उसने इरादा बदल दिया है अपना। ईमान से? हाउ स्वीट। वो कह रहा था कि ज़ारा अगर तैयार नहीं है तो ना सही, अब उसे सनिया अहमद पसंद आ गई और बहुत जल्दी उसके डैडी तुम्हारे अब्बू से बात करने के लिए आने वाले। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी तस्वीर बनाई तुमने।
अच्छी है? बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए तुमने ये दीवार खाली रहने दी थी? जी जनाब। वैसे बाय द वे, आपस की बात है, ये तस्वीर तुमने खुद बनाई है या? अब्बू बहुत बुरे हैं आप, मैंने 2 महीने लगा के ये तस्वीर पूरी की है। मेरी जान, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी? मैं तो मौजूद हूँ, मुझे कहती तो मैं लटक जाता दीवार पर तुम्हारे लिए। बहुत बुरे हैं आप, किस तरह की बातें करते हैं? अरे तुम तैयार नहीं हुई? तैयार? ठीक ठाक तो है कपड़े, बुरे हैं क्या? कमाल है, लड़कियों को बनने संवरने का तो इतना शौक होता है, तुम्हें क्यों नहीं है? ऐसी फजूल में इतनी मेहनत करो, शक्ल तो वैसी की वैसी रहती है, और अगर कुछ बेहतर भी हो गई तो उससे क्या होगा? आप चुप हो गए? तुम बोल रही थी, अच्छा लग रहा था। नहीं, मजाक कर रहे हैं आप ऐसे। नहीं सच, तुम इतना कम बोलती हो कि जब बोलती हो तो बड़ी खुशी होती है। मुझे नहीं आता कोई बोलना बोलना, और बोलती हुई तो सब गलत सलत कर देती हूँ, इसीलिए मैं लोगों के सामने बोलती नहीं। बोला करो। अबू मैं इतनी डरपोक क्यों? सनिया तो ऐसी नहीं है। क्यों? क्या वो ख्वाब फिर देखा तुमने? नहीं, ख्वाब की बात नहीं है, मुझे तो जागते हुए भी डर लगता है। बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्यों डरती हो। जिस तरह इंसान एक दूसरे की खुशियां शेयर करते हैं, उसी तरह खौफ भी शेयर करते हैं। तुमने अपने माँ बाप के साथ उनका खौफ शेयर किया है। मैं और तुम्हारी अम्मी 2 अलग अलग दुनियाओं के लोग हैं, इत्तेफाक से या किस्मत से कहीं मिल गए थे। वक्त का कोई लम्हा ऐसा होता है कि उसकी जद में आए हुए लोग खुद ब खुद उस वक्त के फैसले के पाबंद हो जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ, बड़ी मुखालिफतें हुई, बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन कोई हमें अलग नहीं कर सका। उस वक्त मैं इतना बड़ा अदाकार नहीं था। तुम्हारी अम्मी ने मेरी मदद करने को जॉब कर ली। हम दोनों सारा दिन मेहनत करते थे। वो अजीब दौर था। हम दोनों खुश भी थे और बहुत खौफजदा भी थे। कहीं हम हार न जाएं, ये खौफ हर वक्त साथ रहता था। यही खौफ तुमने हमसे लिया है। तुम आई तो कोई तुम्हें घर पर रखने वाला नहीं होता था। तुम्हारी अम्मी नौकरी पर जाते हुए तुम्हें सुलाकर ताला लगाकर चली जाती थी। सब हमसे खफा थे। कोई रिश्तेदार साथ देने को तैयार नहीं था। सिर्फ तुम्हारी आनी खाला कभी कभार जिद करके चली आती थी। अब मैं सोचता हूं कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है। नहीं अब्बू, मैं तो खुश हूं कि आप लोगों के साथ मैं शरीक रही हूं शुरू से। हमारे गम भी अजीब थे और हमारी खुशियां भी। तुम शायद अब पछता रही हो। मैं कभी नहीं पछताई अपने फैसलों पर। हालात का दबाव बड़े बड़े फैसलों को बहा कर ले जाता है। हालात का दबाव कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, इंसान और जज्बे उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो फिर परेशान क्यों? परेशान मैं इसलिए हूं कि सोच रही हूं कि अगर तुम्हें ये प्रोफेशन सूट नहीं करता है तो छोड़ दो इसे, कुछ और करो। कुछ दिन और रुक जाओ, जरा सब्र कर लो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि मैं इसमें कामयाब जरूर होऊंगा। जो ख्वाब मैंने देखे वो जरूर पूरे होंगे। तुम नहीं जानती तुम्हारी अम्मी ने हम लोगों की खातिर क्या क्या कुछ किया है। तुम्हारी अम्मी ने बड़े दुख उठाए हैं शादी के बाद। फिर तुम्हारे नाना पर दिल का दौरा पड़ा। हम लोगों ने देखने गए, मगर उन्होंने उस वक्त भी हमें माफ नहीं किया। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम मेरी तरह हो, सोचती रहती हो, दूसरों की मुरफ़त में अपना नुकसान कर लेती हो। ऐसा मत करना। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में जो कुछ मैं नहीं कर सका वो तुम कर लो।
अरे आप तैयार होकर आ गई? अब लग रहा है कि मेरी सालगिरह है। वाह वाह वाह। चलिए जी, मैं भी तैयार हूँ। कैसे मेरे कपड़े? वाह, लुकिंग वेरी स्मार्ट। क्यों? चले आए बेटे। आइए। वाह, कितना मजा आया ना आज। हाँ, अब्बू कहीं भी जाए ना तो लोग बस जान के कैसे दौड़ते हैं। इतने मजे की तस्वीरें खींची हैं आज। पता है, एक रिपोर्टर कह रहा था कि हम लोगों का इंटरव्यू लेने आएगा। तुम डांट देती। तुम्हें पता है कि अम्मी को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। हाय, मुझे तो बहुत पसंद है। काश मैं भी इतनी मशहूर होती। मैं तो खुशी की माई जमीन पे पाँव ही ना पड़ते। अब कौन सा तुम्हारे पाँव जमीन पे पड़ते? अब तो खैर दूसरी वजह है। और आज सोने से पहले तुम आगे कुर्सी पढ़ लेना और पढ़ के मुझे भी फूंक देना, वरना रात की तरह चीखें मारोगे, मुझे भी डराओगी। अगर अम्मी उस फोटोग्राफर को मना ना करती ना तो कितनी मजे की तस्वीरें बनती। उससे क्या फायदा होता? तुम फायदे नुकसान की बातें मत किया करो मुझसे। अरे ये कम फायदा होता है कि लोग पहचानने लगते, हमको मुड़ मुड़ के देखते। उससे क्या होता? सो जाओ। तुम्हारी समझ में नहीं आएगी ये बात। अखबार वाले और फोटोग्राफर्स पागलों की तरह आसपास घूम रहे होते, ठाठ होते। सनिया, सो जाओ। पता है, तुम उन लोगों में से जो ना खुद खुश हो सकते हैं ना दूसरों को खुश होने का मौका देते। बेवकूफी की बातें सोच सोच के खुश होने से क्या फायदा? फायदा क्यों नहीं है? बहुत फायदा है। दिल खुश जाता हमारा। अरे कब तक जाग रही हो? नहीं, सो जाओ, बहुत रात हो गई। शब खैर। शब खैर। और ये अब तक सीने से लगाए हुए हो बच्चों की तरह पागल। अम्मी एक मिनट, लाइट मत बंद कीजिएगा। क्यों? अंधेरे में घबराहट होने लगती है मुझे। रोज भूल जाती हूँ। अच्छा बेटा, सोना मत, मैं 1 मिनट में। अब क्या अम्मी सर्च लाइट ला के रखेंगी तुम्हारे सर पर? दूध ओवल्टीन लेने गई होंगी। और अगर तुम्हारी वजह से दूध ओवल्टीन पीना पड़े ना तो याद रखना, ज़ारा अहमद, गला दबा दूंगी तुम्हारा। लो ज़ारा, इसे पहन लो बेटा, और पहने रहना। ये तुम्हारी दादी का था। इसमें कुरानी आयत है। जब तुम छोटी सी थी ना और ख्वाब में डर जाया करती थी तो मैं इसे तुम्हारे सरहाने रख देती थी। अब तो तुम पहन सकती हो। बहुत खूबसूरत है और बहुत कीमती भी होगा। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी। काश वो फजूल सा ख्वाब मुझे ही आया होता। सानिया, चलो सो जाओ, उठो। अच्छा बेटा, शब खैर। शब खैर। अरे वाह, तुम तो बैठे बैठे इलाकों की मालिक हो गई। अम्मी का खानदान शर्ती अमीर था। फायदा क्या जब आपस में प्यार ही नहीं था। ऐसे आनी के पास भी बड़ी जबरदस्त चीज है। हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल गई। क्या कहा जा रही हूँ? तुम्हारे सवालात में बड़ा नाम